सभी को नमस्ते, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th जून वी आर मीटिंग, वी आर ऑल हियर टू जस्ट डिस्कस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। Though it is, we can't say a particular day to be a world environment day. Environment is a place that we are living in. Our air, our water, our surrounding. एनवायरमेंट हमारे बॉडी का भी है, हमारे माइंड का भी है, हमारे घर का भी है और बाहर का भी है। सो इट बेसिकली स्टार्ट्स विद अस एंड द सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो भी है सबसे स्टार्ट होता है। सो इट बेसिकली स्टार्ट्स विद मी, बेसिकली स्टार्ट्स विद एवरी इंडिविजुअल। सो टुडे वी आर हियर, हम एक बार मिलकर बात कर सकें, हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं अभी तक, क्या वो ठीक है या नहीं, या हम कुछ उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं। Just that it is a day we are celebrating just to remind us कि yes, are we moving correct or something that we can do जो हमारे हाथ में है, because once we start working together then only we can make a difference. And that is the only effort that Mitti Connect is all about. Mitti Connect is all about we individuals working together hand in hand so that we can take our consciousness, our awareness about the environment forward. Connecting with each other, connecting with the environment, we can go forward. So we'll introduce with the team Mitti Connect. I'll introduce you to Namrata, who's a core thought process behind Mitti Connect. So it is basically team of individuals. Dr. Aradhna is with us, Dr. Madhu is with us, Parvata ji is with us. Please, आप सब, I will pin you all. So with Dr. Aradhna, we can start with our first topic, which is waste sense. Dr. Aradhna is a psychologist by profession and environmentalist by passion. She is doing a good job in Rohini. Plastic collection is one of her forte. She is doing a lot of plastic, getting so much plastic collected from everywhere. And we also have Dr. Madhu with us. Dr. Madhu is a dentist by profession and another environmentalist. Dr. Aradhna, can we start with your topic for the day? Dr. Aradhna, you are on mute, I think. Aapka mute hai. Okay, good morning everyone. Happy Environment Day, World Environment Day. And thank you Pooja ji for the kind words. So as Pooja ji just said कि आज केवल आज Environment Day नहीं है. It is every day of the year, every moment that we live. We have to live mindfully about what is around us. हमें कुदरत ने क्या दिया है और हम उस कुदरत को वापस क्या दे रहे हैं। और जब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात कर रहे हैं तो host, please allow me to share screen. Yeah, sure. I'm making you host. So it is जैसे हमने टॉपिक आपको दिया है, waste sense and being mindful. So it is only about becoming more mindful about how हम कैसे जी रहे हैं. हमारा हर पल जो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे ना केवल हमें, दूसरों को
एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ के लिए हम ज़्यादा माइंडफुल बने, ज़्यादा सतर्क हों, अवेयर हों। आज का सेशन केवल और केवल इस चीज़ पर फोकस करने के लिए है कि हम जाने कि हम अपनी ओर से, देखिए सिर्फ हम जितने भी 20-25 लोग जुड़े हुए हैं, जो इमीडिएटली जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम एनवायरमेंटल इश्यूज से के लिए हम सब पैशनेट हैं, इसलिए हमारे लिए मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये मीटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम ये तो जानते हैं कि हमें कुछ करना है, पर क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये आज का सेशन मेनली फोकस करेगा इस चीज़ पे। तो आज अभी हम जो तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और इस विषय में बात करने के लिए हमारे पास ना केवल हम जब दिल्ली से बाहर निकलते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम दिल्ली, तो जब हम लोग दिल्ली से बाहर निकलते हैं, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल? Yes, yes. Yes, ma'am. Can see. Dr. Radhna, should I help you? मैं कर दूँ screen share if you are not comfortable. अगर स्क्रीन I'll be more comfortable. और videos बीच में जो होगा that you will be sharing, right? Yes. So, is the screen coming? Yes, it's coming otherwise. ठीक है, you continue. You continue. So basically अगर आप देखें तो आज हम बात करने वाले हैं इन सब की, जो हम सब दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो हम लोग इतने इनोवेटिव है, हमने नेचर को भी मात दे दिया है, हमने दिल्ली को एक हिल स्टेशन बना दिया, दिल्ली के चारों तरफ, ना कि भी दिल्ली, सारे जितने भी सिटीज हैं इंडिया के, तो जो वर्ल्ड के 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उनमें इंडिया तो नंबर 1 है, इन द सेंस के दिल्ली इज नंबर 1 मोस्ट पॉल्यूटेड, एंड वी हैव another 10 cities in that list of most polluted cities, in a list of 20 world class cities. So हम ये देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हमारे छोटे शहरों में भी, और अब जब आप आउटस्कर्ट्स पे जाते हैं तो गांव में भी बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। तो ये पापा को मैजिक ये दिखाना है, और हम देखते हैं कि उस वेस्ट में बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है जिसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, वो वेस्ट एक्चुअली नहीं है, किसी के लिए वो जीविका का साधन भी है। तो वेस्ट के थोड़े से स्टैटिस्टिक्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बस आप ग्राफ्स पे नजर डालिए और ग्राफ में देखेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन भी चाइना का है। यूएस में क्योंकि कंज्यूमरिज्म बहुत है तो सॉलिड वेस्ट जनरेशन यूएस में भी बहुत है, और अगेन इंडिया की भी पॉपुलेशन बहुत है तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन आपके लोग है, पर यूएस का पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया से कई गुना ज्यादा होते हुए भी उनका हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट तो अभी हमारे इंडिया में नहीं बने हुए हैं। अब हम अगर ये देखें तो दिल्ली इंडिया के शहरों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन या वेस्ट दिल्ली में जनरेट होता है, फिर मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में और कलकत्ता में। पर फॉर्चुनेटली
हैदराबाद में बहुत अच्छा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आप वहां जाएंगे तो आपको सड़क पे कहीं भी कूड़े के ढेर नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको 2 साल पहले की रिपोर्ट बता रही हूँ, जब मैं खुद हैदराबाद गई थी और मैं गाड़ी की खिड़की से झांक झांक के देखने की कोशिश करती थी कि कहीं कूड़े का कोई ढेर दिख जाए। हाँ, तो आराधना जी एक सेकंड, मैं यहाँ 1 मिनट रोकूंगी। गौरव जी प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए। I'm sorry, 1 second. हाँ 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 जी, कोई बात नहीं। तो मैं केवल इस बात को पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि जब हैदराबाद, वो भी हिंदुस्तानी है, जब वो कर सकते हैं तो हम दिल्ली में रह के भी हम भी कर सकते हैं। तो वहां से हमें इंस्पिरेशन लेनी है कि कैसे हम अपना वेस्ट को मैनेज करें। ये देखिए जो हमारे लैंडफिल साइट्स हैं उनकी हाइट का अंदाजा आपको मैं देना चाहती हूँ इस ग्राफ के थ्रू। कुतुब मीनार से आप कंपेयर करिए, गाजीपुर, भलसवा, ओखला, नरेला, बवाना, ये आज की डेट में सबसे एक्टिव लैंडफिल साइट्स यही हैं। बाकी लैंडफिल साइट्स कभी आप देख जाएंगे शाहदरा की तरफ, वहाँ एक लैंडफिल साइट, तिमारपुर की तरफ, ये लैंडफिल साइट्स पहले थी जो बंद हो चुकी हैं क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से ओवरफ्लो कर रही थी। तो हमारा आज का मुद्दा क्या है कि हम जो कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, हम क्या क्या फेंक रहे हैं। हमारे घर में से जो कुछ भी निकल रहा है हम सब एक साथ कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। तो जब हमने किचन का वेस्ट, प्लास्टिक बैग्स, पेपर, प्लास्टिक के और 1000 चीजें जो घर में निकलती हैं, बच्चों ने हर दूसरे दिन 2-4 मतलब एक पढ़ने वाला बच्चा हफ्ते में 2 पेन फेंकता ही फेंकता है। कभी कोई खिलौना टूट गया, कभी कोई बैटरी बदली है, रिमोट की, घड़ी की, हम सब कुछ एक साथ फेंक देते हैं और हमारा जो एटीट्यूड है कहीं भी फेंक, कूड़ा है। अब इतना तो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे कि कूड़े दान में डालना है, लेकिन हम सब कुछ जब एक ही जगह डाल देते हैं तो उसका नुकसान जो है वो हमारे साथ और जो जीव रहते हैं इस धरती पर, उन्हें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। अब हम अपना जो घर से कूड़ा निकलता है या कहीं भी इंस्टीट्यूशन से कूड़ा निकलता है, इंस्टीट्यूशंस में कंपोस्टेबल वेस्ट कम होता है। ये जो घर का कूड़ा निकलता है उसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अगर आप अपने घर के कूड़ेदान की में कंटेंट देखेंगे तो 50 to 60% जो है कंपोस्टेबल है, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि एनीथिंग दैट इज अक्वायर्ड फ्रॉम नेचर, जो भी हमें नेचर से मिला है। तो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, चाय पीते हैं, इवन पेपर इज अ बायोडिग्रेडेबल थिंग, बट पेपर को हमें कंपोस्टिंग में नहीं डालना चाहिए। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। तो अगर हम देखें कि जो हमारे आसपास कूड़े के ढेर हैं उनमें कंपोस्टेबल यानी कि ग्रीन वेस्ट यानी हमारा किचन वेस्ट वो है। फिर ब्राउन वेस्ट है। ब्राउन वेस्ट इज जो सारा हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, जो सूख जाता है, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, वो ब्राउन वेस्ट है। उसके अलावा हमारा जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है, रिसाइक्लेबल वेस्ट में मेटल, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारा रिसाइक्लेबल वेस्ट है। रेजिडुअल वेस्ट होता है जैसे हमारे घर का कूड़ा निकला, बाल है, ये सब जो चीजें हैं ये रेजिडुअल वेस्ट में जाता है। इस ग्राफ में मुझे एक्चुअली ग्राफ कोई और लेना चाहिए था। एक कैटेगरी और है जो वेस्ट की, वो है ई वेस्ट। ई वेस्ट इज जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है
बिजली से चलने वाली या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो ई वेस्ट में आती हैं, जैसे कि बैटरीज हो गए, चार्जर्स हो गए और कीबोर्ड्स, ये सब चीज़ें ई वेस्ट में आती हैं। फिर आजकल बच्चों के बहुत सारे बैटरी ऑपरेटेड टॉयज वगैरह होते हैं, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ ई वेस्ट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे घर के कूड़े का। तो आप सोच के देखिए कि अगर एक कॉलोनी का वेस्ट डंप है, उसमें 50% वेस्ट जो है वो कंपोस्टेबल है। तो अगर उस कॉलोनी से 2 ट्रक कूड़ा रोज का जाता है, डीजल से कितना पोल्यूशन होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम उस 2 की जगह 1 ट्रक कूड़ा कर दें वहां जाने के लिए, आप सोचिए हम कितना पोल्यूशन बचा सकेंगे। दूसरा, 29 to 30% जो है हमारा रिसाइक्लेबल वेस्ट है। तो अब हमारे पास बचा कितना? केवल 20% वेस्ट बचा लैंडफिल में जाने के लिए। तो अगर हम प्रॉपर्ली अपने घर के वेस्ट को वो करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, तो हमारे लिए, हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ प्रॉपर्ली कर पाएंगे। अब ये देखिए हम ये कर रहे हैं। डॉक्टर आराधना, यहाँ मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी, कहना है अभी जैसे डॉक्टर आराधना ने कहा ना कि जब हम मिक्स्ड वेस्ट फेंकते हैं तो व्हाट हैपन्स, ये अदर एनवायरनमेंट में और चीजों के लिए खतरनाक है, बट अबव ऑल ये हमारे लिए कैसे हैजार्डस है। जब ग्रीन वेस्ट से मीथेन निकलता है ना। अभी हमने देखा परसों भी यहाँ पे भलसवा लैंडफिल में आग लगी हुई थी एंड इट इज लाइक 3 days हो गए, अभी तक इट्स स्टिल बर्निंग। जब ये मिक्स्ड वेस्ट में मीथेन की वजह से बर्निंग होता है तो हमारा प्लास्टिक भी जलता है, एवरीथिंग दैट इज विद इट वो सब बर्न होता है। बर्न होने से एवरीवन नो, सबको इतना पता है कि हवा में प्लास्टिक जलने से कैंसर हवा में आ जाता है। वन सिंगल प्लास्टिक आफ्टर बर्निंग कैन कॉज कैंसर टू 1000 people। मतलब इतना जहरीला होता है। एंड जस्ट हमारा सिर्फ एक क्या एक्शन होता है, काली पन्नी में सारा मिक्स किया और फेंक दिया, वो जाएगा हेल में। वो हेल में नहीं जाएगा, हमारे अर्थ को ही हेल बना रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमने क्या किया, लैंड पॉल्यूट किया विद मिक्स्ड वेस्ट। सेकेंड, हमने एयर पॉल्यूट की, बिकॉज 47 डिग्री तक दिल्ली का टेम्परेचर जा रहा है आजकल, इजीली ये बर्न होता है। थर्ड, वाटर बॉडीज। आप अब यहाँ जाओ ऋषिकेश की तरफ, मतलब किसी भी नदी को देख लो, जब जहां पे नदी ड्राई होती है नीचे पूरा लेयर प्लास्टिक का है। एवरीथिंग इज लाइक पूरा, मतलब स्टोन्स नजर ही नहीं आ रहे, इतना वहां गंदा कर दिया इंसानों ने। तो एयर, वाटर, लैंड, तीनों चीजें हम पॉल्यूट कर रहे हैं जस्ट विद द सिंपल एक्शन कि हम मिक्स्ड वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग, अगर हम डिजीज की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि एयर क्वालिटी इज डिटीरियोरेटिंग, और जगह जगह ये इतनी ओपन बर्निंग बंद करने के बाद भी हर जगह बर्निंग हो रही है। थर्मोकोल सब जगह बर्न करके ले जाते हैं। थर्मोकोल एक बार बर्न होता है, जिस जगह पे उसका ऐश गिरता है ना, वो जगह बंजर हो जाती है। सो नाउ वी शुड नो what is the solution, what is to be done at our end. Dr. Radhana, please continue. ओके, थैंक यू नम्रता फॉर योर इनपुट्स। तो आपको नम्रता ने इन अ नटशेल बताया कि मिक्स्ड वेस्ट फेंकने से क्या नुकसान है, ठीक है ना? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें अपने घर के लेवल से शुरू करना है। हम कम्युनिटी और सोसाइटी के लेवल पर वेट नहीं कर सकते, हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है, वी आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन द टाइम बॉम्ब। और आपको जैसे अभी नम्रता ने बताया कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं, आप ये देखिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही सबसे ज़्यादा कोविड में डेथ्स हुई। वाई? बिकॉज ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, हम लोगों के लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वीक लंग्स वाले लोग थे वो कोविड में इफेक्ट हुए, और वो नुकसान हम लोगों ने देख लिया होगा। अब हम और इससे बड़े नुकसान के लिए हम बैठ के वेट नहीं कर सकते।
what should we be doing? So we should be segregating our waste. अभी भारत सरकार के भी पिछले 4-7 साल से पूरे कैंपेन्स हैं जिसमें हरा डब्बा, नीला डब्बा, ये सब आपको पता है, ये सब बताया जा रहा है। तो बेसिकली गीला कूड़ा क्या है? गीला कूड़ा वो है जो जिसमें अपना कुदरती पानी है, जिसमें अपना मॉइस्चर है, वो है गीला कूड़ा। कई बार कुछ लोग मुझे कहते हैं मैम दूध की थैली भी गीली होती है, पर दूध की थैली मोमेंटरली गीली होती है, पर वो प्लास्टिक है, तो वो ड्राई वेस्ट में जाएगा, वो वेट वेस्ट में नहीं जाएगा। तो ये सेग्रीगेशन हमें घर से ही करनी जरूरी है कि वेट वेस्ट यानी कि सारा कंपोस्टेबल वेस्ट, जो चीज धरती से हमें मिली है वो चीज वेट वेस्ट है, उसको कंपोस्टेबल या ग्रीन बिन में डालना है। और जो सूखी चीजें हैं जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, हर तरह का प्लास्टिक, गत्ता, मेटल, ग्लास, फॉइल, ये सब चीजें, मेटल, ये सब जो है ये नॉन कंपोस्टेबल में जाएगा। तो नॉन कंपोस्टेबल में रिसाइक्लेबल, रिजेक्ट्स और ई वेस्ट जाएगा। इनका फर्दर जो वो है, क्या कहना चाहिए, सेग्रीगेशन, वो मैं आपको अब बताऊँ। ग्रीन वेस्ट में जो ये आपको जो कलर सिंबल्स बता रहे हैं, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिंबल्स हैं, इंटरनेशनली गिवन सिंबल्स हैं। अब आप देखिए ग्रीन यानी कि कंपोस्टेबल या ऑर्गेनिक वेस्ट, उसमें ऊपर लीव्स बनी हुई हैं 2, ये सिंबल है जो इंटरनेशनली आपको देखने को मिलेगा ऑन कंपोस्टेबल वेस्ट। दिस इज a symbol of recyclable waste. This is a symbol of medical waste या sanitary waste, and e-waste के लिए ये green E, which is again recyclable, but it is e-waste and it has to be given only to an authorized dealer. आप किसी भी कबाड़ी को जब अपना कोई भी सामान देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो बिलीव मी पीछे एक स्टडी आई थी जिसमें मुरादाबाद के पास, बेसिकली रामपुर मुरादाबाद नैनीताल के पास एक नदी बहती है रामगंगा, जो ई वेस्ट के इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से आज की डेट में काली नदी है, बिल्कुल पॉल्यूट हो चुकी है। तो आप ये जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसके साथ क्या करना है, या आपके घर में से जो प्लास्टिक निकल रहे हैं उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हमें डॉक्टर मधु भाई बताएंगी। डॉक्टर मधु, प्लीज टेक ओवर। Hello, ma'am. I'm audible. Yes, Dr. Madhu, you're audible. Yes, you are audible. Please go on. Okay. Hello, everyone. लाइक कल मैं निकल रही थी अपनी कार से, वहां से ड्राइव करते हुए, तो रास्ते में झील वाला पार्क है, उसके सामने कूड़ादान जिसको कहते हैं, वहां पे 3-4 लेबल्स लगे हुए थे और आई वांटेड टू मेक द वीडियो फॉर दैट, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल है मेरा ग्रीन मधु ऑन अ मिशन करके, तो मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड उस पर वीडियोस डालती रहती हूँ। तो मेरा मन था कि मैं अपनी कार से उतर के उनकी वीडियो बनाऊं, उनसे उनका इंटरव्यू लूं, भैया कैसे काम करते हो इतने कूड़े में, किस स्मेल में, बट वो इतना स्मेलिंग एरिया था कि मेरे हिम्मत नहीं हुई कि मैं कार से उतर के वहाँ पे वीडियो बना लूं। एंड दोस पुअर स्टाफ्स, दे वर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर आवर वेस्ट टू सेग्रीगेट। The smell was yuck and बहुत बुरी साइड थी। और इतना कूड़ा होता है, ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी ये रहती है कि यार हम तो पैसे दे रहे हैं कूड़े वाले को, हमने पन्नी में डाला, हमारा काम खत्म। ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये तो उनका काम है कूड़े वाले का उठाना और उसको अलग अलग करके जहाँ उनकी डेस्टिनी है वहां तक पहुंचाना।
बट अगर हम अपनी इंडिविजुअल लेवल पर ही कूड़े को खत्म करेंगे तो बहुत बहुत हद तक लैंडफिल्स में और ये सब प्रॉब्लम खत्म हो सकती है जहाँ आए दिन आग लगी रहती है। तो ये हम सबकी ड्यूटी है, थोड़ा सा हमें अपने कंफर्ट लेवल से जो है बाहर आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि उसे जो है गीले कुछ कचरे से खाद बनाना या प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए देना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत एफर्ट्स नहीं लगते हैं। तो थोड़ा सा हमें कंफर्ट लेवल जो है अपना छोड़ना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। अगर हम रियली रियली केयर करते हैं एनवायरमेंट के लिए एंड आगे फर्दर जनरेशन के लिए हमें जो है अच्छा माहौल है, अच्छा एनवायरमेंट अगर हमें छोड़ना है। गीले कचरे से आप जो है खाद बना सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियोस बोलूंगी, नम्रता या डॉक्टर आराधना को वो शेयर करेंगे। एंड या प्लास्टिक जो है, जितना भी प्लास्टिक आप यूज करते हो, सबसे बेस्ट आपका रहता है रिफ्यूज। आप जब भी घर से बाहर जाइए क्लॉथ बैग लेके जाइए, ताकि आप जो भी सामान लेके आए उसके अंदर डालें। उसके लिए हैबिट डालनी थोड़ी सी टाइम लगता है, सबसे इजी रहता है। मैं क्या करती हूँ, एक पर्स में रखती हूँ छोटा क्लॉथ बैग, एक डॉक्टर मधु, आपका ना वीडियो नहीं आ रहा और आवाज भी थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे बहुत। कैन एनीवन सी द वीडियो? डॉक्टर मधु का वीडियो आ रहा है किसी को? थम्स अप और थम्स डाउन बिकॉज यू आर ऑल म्यूट। हाँ, अब आ रहा है शायद। नाउ नो, वीडियो इज नॉट शोइंग। नहीं, आपका ये स्क्रीन वीडियो नहीं आ रहा था। लाइक आई वाज नॉट एबल टू सी। ठीक है, यू कंटिन्यू। आप एक बार ना प्रैक्टिकली आप बता दीजिए कैसा होता है कंपोस्टिंग, और शुड आई शेयर द वीडियो जो आपका यूट्यूब वीडियो है कैसा? फर्स्ट आई टेल यू theoretically for 1-2 minutes and then you can show the video. ठीक है। तो लाइक जो प्लास्टिक है, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन आईपीसीए वाले आपके घर के दरवाजे से लेके जाते हैं प्लास्टिक आपका जो भी आप यूज करते हैं एंड उसको रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करके जो है उससे रोड्स, बेंचेस, चेयर्स एंड इस टाइप से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो आपको कोई भी प्लास्टिक को कूड़े में डालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि आप अपना क्लॉथ बैग ही कैरी करें, बट फिर भी आजकल सारी पैकिंग आइटम्स जो है प्लास्टिक में आती हैं, दैट इज अनअवॉइडेबल। तो जितना भी प्लास्टिक है आईपीसीए वालों को जो है दीजिए, वो आपका रिसाइकिल करके दोबारा से अच्छे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं। जो खाद बनती है किचन वेस्ट से, उसके लिए वीडियो चलाई जाएगी। इसको 3 टाइप से हम बना सकते हैं। एक बार मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं, मटका हो गया, कोई गमला हो गया, या प्लास्टिक का अगर आप कंटेनर लेते हैं तो उसमें आपको होल्स करने पड़ेंगे ताकि वो जो है ब्रीथ करे कंटेंट आपका। या फिर आप बोरे में भी बना सकते हैं, बोरे में ऑलरेडी होल्स होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी खाद बन जाती है। एंड आपको उसमें कुछ एडिटिव्स ऐड करने पड़ते हैं। लाइक आपने पहले नीचे आपने ब्राउन जो लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स, उसकी लेयर लगाई। उसके बाद किचन वेस्ट डाला। उसके बाद आपने उसकी कोकोपीट होती है जो नारियल का बुरादा टाइप होता है, वो डाला। या वो नहीं है तो आप गाय का गोबर डाल सकते हैं। उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो सड़ाते हैं आपके कूड़े को, जो भी किचन वेस्ट होता है। या फिर अगर वो भी नहीं है तो आप सिंपल मिट्टी भी डाल सकते हैं। कुछ जो है लोग उसमें गुड़ का पानी डालते हैं, कुछ उसमें लस्सी डालते हैं। ये सब इसलिए डालते हैं ताकि जो भी मौजूद उसमें कीटाणु हैं, जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको गलाएं और वो जो है खाद बन जाए। बस आपको लेयर्स डालनी होती है, ड्राई लीव्स, किचन वेस्ट, कोकोपीट, काऊ डंग और मिट्टी। देन ड्राई लीव्स, किचन वेस्ट, देन कोकोपीट, काऊ डंग एंड मिट्टी, तब तक कि वो ऊपर तक भर ना जाए। डॉक्टर मधु, आपका ना शायद बैंडविड्थ लो है पीछे से। आप या तो अपना वीडियो ऑफ करो, वो आवाज कट कट के आ रही है। इट्स नॉट क्लियर। ओके। It's fine now. हाँ, it's better. So उसको कंपोस्ट का तब तक बनाएंगे जब तक ऊपर तक भर ना जाए। एंड एवरी 3 to 4 days आपको उसको हिलाना है। There was one question at the bottom, I think. I could not see that.
Namrata, you can play the videos. Whole process is there. या डॉक्टर मधु, आपका ना अभी भी बहुत क्लियर नहीं है. आई विल एक्सप्लेन इट. 1 सेकेंड. इज माय ऑडियो क्लियर टू एवरीवन? Yes. ठीक है. टू स्टार्ट विद, जैसा डॉक्टर मधु ने शेयर किया, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बताती हूँ. कंपोस्टिंग मीन्स मेकिंग आवर ग्रीन वेस्ट इनटू सॉइल अगेन. ठीक है. हमें सॉइल से हर चीज या जो भी अपना किचन वेस्ट जो भी है, हमें उसे सॉइल वापस बनाना है. तो कैसे बनाना है? 3 things are very important. First is green waste, second is brown waste और third is activator. एक्टिवेटर मतलब जिससे उसका प्रोसेस हम थोड़ा सा डेवलप कर सके. आप एक ओप्पो K3 के नाम से आप प्लीज वो म्यूट कर लीजिए. और डॉक्टर मधु, आपका भी पीछे से साउंड आ रहा है. नाउ इट्स क्लियर. सो 3 things are important, राइट? तो इन तीनों को हम किस प्रोपोर्शन में डालेंगे ये एक बार हम समझ लेते हैं, और क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं. फर्स्ट तो ग्रीन वेस्ट हमें पता है, हमारा जो घर से निकला हुआ कचरा है. आफ्टर दैट जो हम ब्राउन वेस्ट यूज करते हैं उसमें वी कैन यूज ईदर मिट्टी, या फिर हम इसमें डाल सकते हैं लीव्स का पाउडर या कोकोपीट. घर के लिए अभी हम बात करें तो 3 चीजों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. बाकी इसमें पेपर भी चलता है एज अ ब्राउन वेस्ट, बट वो पेपर वी अवॉइड बिकॉज इट इज रिसाइक्लेबल. तो इट्स बेटर टू पुट इट इन दैट थिंग. और थर्ड थिंग जो हमने डिस्कस करी, दैट इज एक्टिवेटर. अगर हम बिना एक्टिवेटर के भी कुछ चीज को कंपोस्ट करना चाहते हैं तो इट विल गो सिंपली. नेचर का रूल है 108 days इज द परफेक्ट टाइम जिसमें कुछ भी चीज कंपोस्ट होके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉइल. ठीक है. 108 days का टाइम होता है. बट इफ वी वांट टू स्पीड अप वी कैन ऐड समथिंग एज अ एक्टिवेटर और स्पीडिंग अप प्रोसेस. उसमें सबसे इजी चीज क्या होती है? दही थोड़ा सा. ठीक है. जैसे हम मैं अभी प्रोसेस आपको एक बार बताऊंगी हाउ विल मेक कंपोस्ट. उसमें बीच में हर 4 या 5 या हफ्ते में एक बार भी जरा सा आधी कटोरी दही डाल दो. दैट विल वर्क एज एन एक्टिवेटर. फर्स्ट थिंग इज दही. सेकेंड थिंग, जैसे डॉक्टर मधु ने बताया, वी कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ काउ डंग, गोबर. गोबर के जो माइक्रोब्स होते हैं वो यहाँ के एनवायरनमेंट के बेस्ट सूटेबल माइक्रोब्स होते हैं टू ईट अप द ग्रीन वेस्ट. थर्ड, वी कैन यूज बायो एंजाइम हम किसी और वर्कशॉप में विल टीच यू, और आप हमारा कभी आप नेक्स्ट सेशन अटेंड करेंगे, विल टेल हाउ वी कैन मेक इट. और वैसे हमारे पास अदरवाइज कुछ रेडीमेड भी आते हैं, बट वी डोंट प्रेफर एनीथिंग कि हम मार्केट से कुछ भी ले. गो विद द फ्लो. आपके पास घर पे जो अवेलेबल है चीजें वो करो. दही मेरे ख्याल सबके घर होता है. दही या छाछ थोड़ा सा डाल दो. ठीक है. तो करना कैसे, एक बार मैं प्रोसेस समझा देती हूँ. जिसको भी क्वेश्चन हो, अभी किसी ने चैट पे क्वेश्चन लिखा था, वी विल हैव द क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर दैट. सबसे बेस्ट मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के गमले में बेस्ट कंपोस्ट बनता है. प्लास्टिक में बनता है बट वो थोड़ा सा स्मेल करता है, उसका लीचेट निकलता है, सब कुछ. तो मिट्टी के बर्तन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी सिंपल आप गमला ले लो, उसको ढकने का ढक्कन होना चाहिए हमारे पास. हमने एक गमले में मिट्टी ले लिया, जो मैं अपने घर पे फॉलो करती हूँ, और एक हमने खाली गमला ले लिया. उसमें नीचे 2 इंच का मिट्टी और कोकोपीट का मिक्सचर या फिर सूखे पत्ते और मिट्टी का मिक्सचर सबसे नीचे. वो किस लिए डाला? सो दैट हमारा जो इसका पानी निकलेगा ना वो उसको सोख ले. उसके बाद हम डेली का लेयरिंग करते हैं ऑफ ग्रीन वेस्ट एंड वी कवर इट विद सॉइल, लिटिल बिट ऑफ सॉइल, जिससे कि ऊपर का लेयर प्लेन हो जाए, उसमें मक्खी मच्छर कुछ ना आए. ठीक है. एंड लाइक दिस वी विल कीप ऑन डूइंग. एंड वंस द पॉट इज फिल, हम उसको ढक के रख देंगे. अच्छा, डेली भी उसको ढक के ही रखते हैं. इन बिटवीन वी कैन ऐड सम एडिटिव इफ वी फील लाइक, अदरवाइज हो जाता है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है. बीच में थोड़ा सा दही डाल दो या कुछ डाल दो. अच्छा, नींबू ना डालो तो अच्छा है. मेरे घर से जो बल्क जैसे छिलके विलके या जो चीजें निकलती है वी सेंड टू गौशाला. वो हमारा गौशाला में जाता है, और जो बाकी बचता है जैसे चाय पत्ती होगी, प्याज के छिलके हो गए, या कुछ ऐसी जूठी चीज है जो हम गाय को नहीं डाल सकते, तो वी डू कंपोस्टिंग एट होम. ठीक है.
और एडिटिव के लिए मैं इसमें दही या फिर एंजाइम डालती हूँ। गोबर जब कभी एक्सेस हो तो वी ऐड गोबर, 2 चम्मच गोबर से भी वो चलता है, एक बार आप डाल लोगे तो वो होगा। वंस द पॉट इज फिल्ड, हम उसको साइड पे रख देते हैं एंड वी स्टार्ट विद अनदर पॉट। कुछ दिन बाद उसको आप करो तो यू कैन सी कि वो बन गया है, मतलब 40-45 डेज अगर हमने एडिटिव डाला है। और सर्दियों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास थोड़ी कच्ची जगह है कहीं तो वी कैन जस्ट वहां पे थोड़ा सा खड्डा करके वी कैन पुट एंड कवर इट विद लीव्स, दैट इज ओके। हमारा पर्पस है कि वो खाद बन जाए, हमारे कूड़े के साथ ना जाए। एंड एनी अदर क्वेश्चन, अगर किसी का कंपोस्टिंग पार्ट पे कोई क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। है किसी का क्वेश्चन या आप चैट पे लिख सकते हैं। अभी किसी का क्वेश्चन था कि इसमें स्मेल आता है। नम्रता जी, इसमें एक तो चीजें बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कोई क्वेश्चन हो सकता है, एज वी आर लिविंग इन अपार्टमेंट्स, हम लोगों के पास खुली जगहें नहीं है, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू कीप आवर कंपोस्ट पॉट? इट्स बेटर टू कीप इट इन बालकनी। और इसका ना नीचे, अच्छा, इसके नीचे अगर हम वो एक ट्रे रख लेते हैं ना तो क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत लीचेट आता भी है तो उसको हम क्लीन कर सकते हैं। वैसे नीचे जब हम लेयरिंग कर देते हैं ना तो जो वाटर है वो उसमें सोक हो जाता है। गौरव जी, नींबू या खट्टी चीज डालने से ना उसका थोड़ा सा स्पीड अप खराब हो जाता, मतलब जो एक प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इट डाउन है ना, जो माइक्रोब्स रहते हैं, कुछ माइक्रोब्स खट्टी चीज से खत्म हो जाते हैं, वो वाली नींबू या कुछ ऐसी चीजों से। बाकी वो बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए मैं मना कर रही हूँ नींबू का। एल्स यू कैन डू, डाल भी सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबे टाइम में चलता है लेकिन हो जाता है वो भी। अच्छा पूजा, और कंपोस्टिंग के लिए ना हम अगर सोसाइटी में रह रहे हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीच आउट सम पीपल जो लोग ऑलरेडी कम्युनिटी कंपोस्टिंग करवाते हैं। डॉक्टर राधना ने ऐसे कुछ 2-3 मॉडल सपोर्ट किए हैं। एनीवन इंटरेस्टेड कैन रीच हर आउट, और वो गाइड कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ वी कैन डू कम्युनिटी कंपोस्टिंग। तो उसमें क्या है, अगर 100 फ्लैट्स का इकट्ठे होता है तो नथिंग लाइक इट, कि उसमें बिल्कुल इजी हो जाता है। बाकी जैसा अगर हम हाउस होल्ड, अगर हम 4 या 6 पीपल का हाउस होल्ड देखें तो हार्डली इतना ग्रीन वेस्ट निकलता है जो हम गाय को नहीं डाल सकते। एवरीथिंग एल्स, और इंडिया में तो ऐसा कोई कमी नहीं है, हर जगह गौग्रास सेवा रहता है। यू जस्ट नीड टू रीच आउट, तुम्हें देखना पड़ेगा वो कैसे पहुंचना है। फूड वेस्ट शुड नॉट गो एनीवेयर एल्स। इसमें एक क्वेश्चन मेरा और है, विच आई बिलीव अगर किसी और का क्वेश्चन हो तो, कैन वी पुट इन, जैसे कुक्ड फूड है, कैन वी पुट इन द कंपोस्ट? हाँ, वी कैन पुट, अगर वो जूठा नहीं है, जैसे एक आधा दिन पुराना रोटी वगैरह है तो हम गाय को डाल देते हैं, अगर वो ऐसा जूठा नहीं है। बाकी अदरवाइज वी कैन पुट इट इन दिस। व्हाट अबाउट नॉन-वेज? नॉन-वेज का डाल सकते हैं, बट आई डोंट नो, वी डोंट हैव नॉन-वेज, तो मुझे नहीं पता उसका प्रोसेस में क्या स्मेल रहता है या कैसा रहता है। इट्स बेटर नॉट should be avoided. No, non-veg should be avoided. Eggshells you can add. Eggshells को भी आपको बीट करके छोटे छोटे वो पार्टिकल्स डालने हैं। नॉन-वेज जो बोन्स होती है वो नहीं डालनी आपने। हाँ, बोन्स नहीं डालनी। फ्लैश वो तो का आप भी, स्ट्रे डॉग्स को दे सकते हैं। बोन्स कैन बी गिवन टू स्ट्रे डॉग्स। हाँ। एंड एक एनी क्वेश्चन, अदर? समर एंड विंटर मंथ्स में कितना टाइम गैप रहता है? समर्स में लाइक 2-2.5 महीने में बन जाता है, विंटर्स में 1 से 1.5 महीना एक्स्ट्रा लेके चलो आप, इतना रहता है। And what about the exposure to water and sunlight? Composting pots. वाटर एंड सनलाइट, वाटर हमें उसको ढक के रखना, ऊपर से पानी नहीं डालना। और सनलाइट मतलब पेड़ के नीचे या कुछ ऐसे ठंडी जगह पे रख सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा धूप में नहीं रखते हम। बाकी जिनके पास छत है दे कैन डू, छत पे भी रख देते हैं, जैसे डॉक्टर मधु ने बताया कि हम बोरी में कर सकते हैं। अगर छत पे है तो वी कैन डू इन बोरी। उसमें नीचे ना एक लेयर ऑफ जो ये होता है, स्ट्रॉज होती है ना, ड्राई स्ट्रॉज, व्हाट यू कॉल इट, जो जैसे आम पकाने के लिए डब्बे में डालते हैं, पराली कहते हैं उसे। तो पराली का लेयर डाल दो, मिट्टी डाल दो, देन वी कैन स्टार्ट मेकिंग कंपोस्ट इन अ बोरी। उसमें क्या है, नीचे सारा लीचेट उसमें
यूज हो जाता है, लाइक इट होल्ड्स द लीचेट। कोकोपीट भी कर सकते हैं, या कोकोनट पीट महंगा आता है, तो व्हाट यू कैन डू, आप जो कोकोनट वेंडर्स होते हैं उनसे यू कैन बाय दैट, बाय क्या, वो वैसे ही उनको फेंकना ही होता है, वो जो उसका हस्क हस्क, जो होता है उनका। वी कैन फिल द बोरी लिटिल बिट, लाइक इतना सा बोरी में हमने हस्क डाल दिया, आफ्टर दैट वी स्टार्ट मेकिंग आवर कंपोस्ट, तो वो इजी रहता है ऐसा। अच्छा, आई विल आल्सो लाइक टू ऐड समथिंग। हाँ जी श्योर। जैसे अभी किसी ने पूछा है व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर मंथ्स कंपोस्टिंग। तो समर्स में डेफिनेटली कंपोस्टिंग जल्दी होती है, विंटर्स में टाइम लेती है। पर अगर आपका जो बर्तन है जिसमें आप कंपोस्टिंग कर रहे हो उसमें ऑलरेडी कंपोस्टिंग हुई भी है, तो वो उसको हम एक तरह से कहते हैं कल्चर्ड है, वो उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं, तो उसमें विंटर्स में भी कंपोस्टिंग थोड़ा फास्ट होगी। और दूसरा, नींबू को हम इसलिए अवॉइड करते हैं डालना क्योंकि नींबू एंटी बैक्टीरियल है। वो अपने आप में बैक्टीरिया फाइट करने के लिए हम बहुत सारी दवाइयों में और वैसे इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए लेते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए नींबू डालना नहीं चाहिए। और नींबू के छिलके को आप वैसे भी ड्राई करके पाउडर करके आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, उसके स्किन के लिए बेनिफिट्स बहुत हैं। और आप अभी तो टाइम नहीं रहेगा, नहीं तो हम लोग बहुत अच्छा इको एंजाइम बना सकते हैं नींबू के छिलकों से, जिससे एक नेचुरल क्लीनर और जो हम ये एक्टिवेटर डाल रहे हैं वो एक्टिवेटर की तरह काम आ जाता है इको एंजाइम। तो ये सब चीजें हैं। अभी किसी ने ये भी लिखा था कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए और जिससे कूड़ा लोग अपने अपने घरों में कंपोस्टिंग करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स नहीं, 2016 में लॉज बन चुके हैं। आप ऑनलाइन जाइए और पूरा गवर्नमेंट गैजेट है इसको लेके, जिसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति जो कूड़ा जनरेट कर रहा है वो उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने कूड़े का निदान खुद करे। और म्युनिसिपैलिटीज को ये बाय लॉ दे आर एंटाइटल्ड, मतलब उनको ये पूरा राइट दिया गया है कि दे कैन एनफोर्स अ फाइन ऑन पीपल हु आर नॉट कंपोस्टिंग देयर ओन वेस्ट। तो ये अवेयरनेस हमें एक्चुअली फैलाने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग RWAs में या इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को कंपोस्टिंग के लिए इनकरेज करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों का यही आर्ग्यूमेंट होता है कि हमें क्या करना है, ये तो सरकार का काम है। तो लेकिन और जब हम लोगों ने MCD के साथ लोगों को फाइन इम्पोज करने की कोशिश की, तो लोगों ने ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर डलवाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस को भी नहीं पता कि ये लॉ है। तो इसीलिए हम जैसे लोग जो एनवायरनमेंट के लिए इतने जागरूक है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को बताएं कि ये लॉ है, और जो अपनी कंपोस्टिंग नहीं कर रहे हैं उनका चालान कटवाइए। तो ये दो तीन डॉक्टर राधना हियर, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। लॉ होता है तो ब्रेक करने वाले सबसे पहले होते हैं, तो व्हाट वी कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट पीपल, हाँ, ब्रेक कर रहे हैं 10-20% लोग, तब तो समझ आती है। यहाँ तो 10-20% फॉलो भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है ये। एक्चुअली ये सब चीजें ना, दिस इज समथिंग बड़ा मेसी लगता है लोगों को, फर्स्ट थिंग। दूसरा, फैशन में नहीं है, तो वी नीड टू क्रिएट फैशन ऑफ दिस, दैट हाई हेडेडली वी शुड फॉलो सच रूल्स। देखिए, अपना हमें बॉलीवुड से कहना पड़ेगा टॉयलेट की तरह एक वेस्ट मैनेजमेंट की या कंपोस्टिंग की मूवी बनाए जिसमें फैशन में आए, क्योंकि टॉयलेट हम ओपन डिफेकेशन फ्री इसीलिए हो पाए क्योंकि टॉयलेट जैसी मूवी बनी और ये हर घर तक पहुंचा ये मैसेज। एक्चुअली वो We have to request Akshay Kumar then. Akshay Kumar can do it.
हाँ तो वहाँ He तक did for sanitary pads even, he did for toilets even. Now he can do for waste management also. He has to do it. waste management. Continue with the content because हमारा बड़ा कुछ है अभी बताने वाला है. Just we started with the first part of the waste, that is compostable. उसका मैंने बताया आपको. डॉक्टर राधना अगर कुछ और ऐड करना है और अच्छा further, my request is आप मिट्टी कनेक्ट की वेबसाइट पे आप एक फॉर्म है गूगल फॉर्म उसको फिल करिए. And if you have some specific request, like if you want a composting session in your area or two group of people, we can help you out. और कुछ लोगों से connect कराना है, that also will help. ठीक है? Now coming to the second part of our waste, that is recyclables. Namrata, Dr. Radha, videos will it be played? हाँ, एक्चुअली वीडियोस का भी हम ना ग्रुप में शेयर करते हैं. वो हमने कंपोस्टिंग पार्ट समझा दिया. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड डॉक्टर मधु, आप बता दीजिए कंपोस्टिंग पार्ट में. I think it's covered, almost everything is covered. हाँ, क्योंकि वीडियोस में ना हम 7-8 मिनट्स का वीडियो है, हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे सो दैट यू कैन वॉच फॉर. नाउ लेट्स should I share the screen, डॉक्टर राधना? आप नेक्स्ट अभी रिसाइक्लेबल्स कौन टॉपिक लेगा, आप या डॉक्टर मधु? नम्रता, one thing more. हाँ जी, मनीषा जी भी हमारे साथ हैं अभी. हाँ जी, So हाँ. we would like 10-15 minutes for Manisha ji even. Yeah, sure. हाँ जी. Pooja, it's a request. Hello, Pooja. हाँ जी, हाँ जी. Let them continue. I'm there. हाँ. है ना? Then ठीक we'll है. start. No issues. Okay. So Dr. Radhana, should I share the screen? yes, please. हाँ, I'm sharing. You guide me कौन. So we've talked about the compostable waste. Now let's talk about the recyclable waste. So recyclable में मैंने पहले आपसे बात की थी जब हम compostable की बात कर रहे थे. Paper is a very innocent thing. It is made out of trees, bamboo. It is made out of basically natural materials. तो अगर हम इसे मिट्टी में डाल देते हैं या अपने दूसरे कंपोस्टेबल वेस्ट के साथ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ डाल देते हैं तो ये हार्मलेसली डिकम्पोज हो जाता है और खाद बन जाता है. लेकिन जब हमें पेपर बनाना होता है तो फिर नए पेड़ काटने पड़ते हैं. तो इसीलिए इट इज बेटर नेवर टू put your paper in the composting site and try कि आपका पेपर रिसाइकलिंग के लिए जाए, क्योंकि रिसाइकल्ड पेपर बनाने में फ्रेश पेड़ काट के जो पेपर बनाया जाता है उससे कहीं गुना कम पानी और कहीं गुना कम बिजली लगती है. तो अगर हम पेपर रिसाइकिल करते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है. आपको मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया में केवल 26% पेपर रिसाइकिल होता है. बाकी जो 74% पेपर बनता है वो फ्रेश वुड से बनता है, जिसके लिए हर साल बहुत सारे जंगल हमारे कटते हैं. और बहुत बार इंडिया ओल्ड पेपर इंपोर्ट करता है. आप सोच सकते हैं कि हमारी जैसी आबादी वाला देश कूड़ा इंपोर्ट कर रहा है. क्यों? क्योंकि हमें रिसाइक्लेबल पेपर बनाना है. तो इसलिए हमें अगर मेरा अपना ये अनुभव है कि अगर हम अपने घर में हर पर्ची, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में, कहीं सुपर मार्केट में जा रहे हैं, आपको वो बिल की पर्ची दे दी है, सिनेमा में जा रहे हैं बिल की पर्ची है. मतलब ये छोटी छोटी पर्चियाँ, आपने कुछ लिखा और आपने फाड़ दिया टुकड़े टुकड़े करके कि आप नहीं चाहते किसी के हाथ लगे,
ये सारी छोटी से छोटी पर्ची अगर आप इकट्ठा करेंगे, हर घर से करीब करीब आधा किलो पेपर हर महीने निकल सकता है। हर घर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हम पुरानी कॉपियों और किताबों पे तो ध्यान देते हैं, अखबार को हम रिसाइकलिंग के लिए बेच देते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को नजरअंदाज करते हैं। अगर हम वो सब भी इकट्ठे करें तो हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। दूसरा जो है प्लास्टिक के लिए भी डॉक्टर मधु ने अभी आपको बताया कि कैसे आप छोटे से छोटा प्लास्टिक का रैपर या अभी आगे इसका अगला स्लाइड दिखाना प्लीज नम्रता। मैंने MLPs का एक स्लाइड डाला है। MLPs यानी कि मल्टी लेयर पैकेजिंग। मल्टी लेयर पैकेजिंग आप ये देख सकते हो किसे कहते हैं। मल्टी लेयर पैकेजिंग जिसमें बाहर प्लास्टिक है, अंदर सिल्वर फॉइल है और उसके बीच में एक और प्लास्टिक है। तो मतलब 2-3 लेयर्स इतने ज्यादा कंप्रेस करके ये बनाया जाता है जिससे ये आमतौर पे जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग है उसमें नहीं जा पाता है। पर अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जिससे इस तरह का प्लास्टिक जो आंधी के टाइम पे आप हवा में उड़ता हुआ देखते थे, ये प्लास्टिक भी अब रिसाइकिल हो सकता है, इसको रीयूज किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर मधु ने बताया कि IPCA वाले लोग ले जाते हैं तो ये या तो इसका वापस से दाना बना देते हैं या रोड कंस्ट्रक्शन में इस प्लास्टिक को यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक को किसी भी तरह का प्लास्टिक आप अपने रिसाइकलर IPCA वाले को दे सकते हो। और इसकी भी आप जब भी पिकअप कराना चाहें तो मिट्टी कनेक्ट की उस पर आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए। आपके एरिया वाइज जब भी कोई वहाँ पे उनकी गाड़ी जा रही होगी तो वी कैन फॉरवर्ड दैट रिक्वेस्ट टू देम। ओके, नाउ देयर इज समथिंग टू टॉक अबाउट। ये जो अभी पिछले ही हफ्ते मधु जी का वेस्ट कलेक्ट हुआ है और हमारे यहाँ सेक्टर 9 रोहिणी में गायत्री अपार्टमेंट्स हैं जहाँ कम से कम नहीं तो 30-35 हाउस होल्ड का ये महीने भर का कूड़ा है। जो आप पिक्चर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के, वो गायत्री अपार्टमेंट्स के लोगों का महीने भर का कूड़ा है। और मधु जी का तो मुझे लग रहा है शायद 6 महीने का कूड़ा हो, अगर केवल उनके घर का है। नहीं तो मधु जी बता पाएंगी वो कितने का है, कितने दिन का कूड़ा है। तो उसके बाद है आ जाओ रेड बिन। रेड बिन विच इज द रिजेक्ट बिन विच इज जिसमें सारा मेडिकल वेस्ट जाना चाहिए। जो हॉस्पिटल्स में मेडिकल वेस्ट होता है, जनरली हर हॉस्पिटल में एज अ रूल देयर इज एन इंसिनरेटर जो होना ही है। जिन छोटे हॉस्पिटल्स में अपना इंसिनरेटर नहीं होता है तो वो कहीं बड़ी फैसिलिटी पे इसको भेजते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था जो शार्प मेटल आइटम्स जिसमें ब्लेड्स वगैरह होते हैं, ब्लेड्स वगैरह भी ये सब हजार्डस वेस्ट में ही आता है। तो शार्प मेटल्स को, जो मेटल्स वैसे रिसाइकलिंग में जा सकते हैं, आपका कबाड़ी वाला ले लेता है, पर जो ब्लेड्स वगैरह हैं वो आप रेड बिन में डालते हैं या ये इंसिनरेशन के लिए भी जाता है। ठीक है, टूटा हुआ ग्लास रेड बिन में जाता जरूर है, लेकिन देयर आर एजेंसीज जो टूटे हुए ग्लास को भी रिसाइकिल करती हैं क्योंकि ग्लास अपने आप में पिघला के ही बनाया जाता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कुछ एजेंसी जरूर होंगी, ऑफ हैंड मुझे याद नहीं आ रहा है, पर यस हम ढूंढ के मिट्टी कनेक्ट के उस पर डाल देंगे वेब पेज पे। अगला स्लाइड। ओके, अब एक और जो ये रेड बिन वाला वेस्ट है, रिजेक्ट वेस्ट है, वो है मेंस्ट्रुअल सेफ्टी के लिए यूज किए गए जो भी हमारे सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं या बच्चों के लिए डायपर्स यूज किए जाते हैं। तो उसके लिए भी अब वैसे तो रीयूजेबल कॉटन के पैड्स बहुत इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप रीयूजेबल नहीं यूज करना चाहते, डिस्पोजेबल
सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं जो बैम्बू से, बनाना लीफ से या राइस हस्क से बनते हैं, जो ऐसे डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स भी अवेलेबल है, सिलिकॉन कप्स अवेलेबल है. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, इको फ्रेंडली ऑप्शंस विच आर अवेलेबल. इसके लिए हम जल्दी ही एक और वर्कशॉप कर सकते हैं. तो आप में से कोई अपने एरिया में या लेडीज ग्रुप्स में कराना चाहे तो हमें बता सकते हैं. इसके अलावा फिर एक चीज जो सबसे ज्यादा और पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, ये सब बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूसेज बहुत बढ़ गया है. तो ब्लैक बिन इज फॉर ई वेस्ट. ई वेस्ट में आप देख रहे हैं कोई भी ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, किसी भी तरह के केबल्स, batteries, chargers, any part of the computer, these are all part of e-waste, जिनको properly वो करना, dispose of करना, इनके authorized डीलर जो है, इनकी लिस्ट आपको CPCB की साइट पे मिल जाएगी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पे या दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पे ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं उनकी लिस्ट बन जाएगी. उसके अलावा हम लोग मिट्टी कनेक्ट पे ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव्स भी रेगुलर बेसिस पे करने की कोशिश करेंगे. एक ड्राइव अभी बहुत जल्दी ही करने वाले हैं हम उसकी डेट आपको इंटीमेट कर देंगे. So it is more about living mindfully and without changing your lifestyle, using things which are more eco-friendly. तो घर से निकलिए, प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े उसके लिए घर से थैला लेके निकलिए. घर से निकलिए, प्लास्टिक बॉटल पानी की ना खरीदनी पड़े, घर से स्टील की बॉटल में पानी लेके निकलिए. अपने पर्स में, बैग में स्टील का फोक, स्पून, स्ट्रॉ, ये हैंडली अवेलेबल रखिए, जिससे आपको कहीं भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक के स्पून, फोक्स, स्ट्रॉज यूज ना करना पड़े. और बच्चों के टिफिन्स स्टील के खरीदिए. बिलीव मी, मेरे दोनों बच्चों ने अपनी पूरी स्कूलिंग एक टिफिन से कर ली, राइट फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12. They are durable, they are easy to clean, they are hygienic, and they look good even after 12 years of usage. So be more mindful of how you live, be more mindful of what you do, and keep your environment and yourself safe. Thank you so much. एंड आई थिंक अब हम मनीषा जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो कैसे ग्रीनिंग माइंडफुली की जाए, प्लांट्स के बारे में, कैसे हम यूजफुल प्लांट्स, कौन से प्लांट्स कब, कैसे, कहाँ लगाएं, इसके बारे में वो बताएं. Thank you, Dr. Adna, for this amazing session. Now we move further to the next part of our session. Before moving, I'll just briefly share 2-3 things. As Dr. Adna shared, first part of composting we shared. Second part is recycling. Maximum recyclables should be reach the recycling process. ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है ना? To help, many things are there. You can reach out to us, और इंटरनेट पे भी अभी बहुत सारे ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे बिग कंपनीज, बिस्लरी एंड ऑल. They also have their projects to pick up the plastic and stuff like that. Third part we shared is actual waste, या जैसे जो जैसे hazardous waste, जो कि मेडिकल वेस्ट शेयर किया ना डॉक्टर आदना पहले हमने. हाँ, मेडिकल वेस्ट शुड बी हैंडल्ड डिफरेंटली. उसके लिए आप अपने आसपास ना सेंटर्स ढूंढ सकते हैं. हॉस्पिटल्स आल्सो टेक सम काइंड ऑफ मेडिकल वेस्ट ना, जैसे मेडिसिन वगैरह का है. और ई वेस्ट के लिए वी हैव सम ऑथराइज्ड. आई विल लाइक टू सजेस्ट कि आप मान लीजिए कि घर में किसी बच्चे को चोट लग गई है या कुछ आप ड्रेसिंग बदल रहे हैं, तो इस सबको एक अलग पॉलिथीन में बांध के बजाय आप अपने कूड़े वाले में के
के डब्बे में डालें, कोई आपके घर के आसपास का नर्सिंग होम हो तो वहां के बिन में डालें, बिकॉज दिल्ली, हाँ, in Delhi there is a process, अभी 6-7 साल से ही शुरू हुआ है, एंड हैप्पीली शेयरिंग डॉक्टर राधना की सिस्टर हैं जिन्होंने दिल्ली का मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत काम किया है. नाउ एवरीथिंग, डाइपर्स, वैसे ट्राई टू यूज कॉटन क्लॉथ डाइपर्स, अदरवाइज यू नीड टू लाइक उसको पॉलिथिन में बांध के करना पड़ेगा, एंड इट्स अ परमानेंट वेस्ट. आप ये देखो कि वन चाइल्ड, ग्रोइंग अप चाइल्ड यूजेस minimum and minimum of 365 kgs of such diapers in a year. मतलब 365 kg रोज का 1 किलो के आसपास वो निकलता है. एंड इट कैन लाइक अगर हम एक डाइपर को पानी की टंकी में डाल देते हैं ना, तो वो इतना ज्यादा वो लाइक स्वलन अप हो जाता है कि वो सारी चीजों को क्लॉग करता है. दिल्ली में वाटर क्लॉगिंग का, डेंगू का, बहुत सारी चीजों का रीजन है द प्लास्टिक और डाइपर और ये जो सैनिटरी नैपकिन यूसेज, क्योंकि ये हमारे गटर्स में और जाता कहाँ है, ये अल्टीमेटली हमारी वाटर बॉडीज या लैंड पे ही जा रहा है. तो वी शुड, अब बड़े सारे ब्रांड्स हैं, दे आर यूजिंग लाइक ये वाले जो क्लॉथ डाइपर्स यूज करो, कभी इमरजेंसी में करना है तो कर सकते हैं, बट बेटर टू यूज समथिंग दैट इज वॉशेबल. Sanitary napkins के लिए अंकिता जी, we can have a different session on that. There is a proper range of things that we'll suggest, जिसमें कि आप एक बार उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, it will end up to 2-3 years. मतलब वो दोबारा खरीदने की भी यूज नहीं करेंगे. हाँ, बैम्बू वगैरह भी हैं और लेस प्लास्टिक वाले ऑप्शंस होते हैं. फिर उसके बाद क्लॉथ ऑप्शंस होते हैं. यू कैन यूज menstrual cup also. Or various options are there. We can discuss on a different, we will have a separate session for that within 2 or 3 weeks. ठीक है. और next part is e-waste. e-waste का हम authorized center अपना ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, वो या फिर क्रोमा स्टोर्स भी ले लेते हैं e-waste. तो better not to put in normal waste. इसमें क्या करते हैं लोग, they break it and take out the valuables, और बाकी सब जो उसमें dangerous चीजें होती है ना, वो environment में spread हो जाती है. ठीक है. तो हमारी जिम्मेवारी, अगर हम कोई ई वेस्ट फेंकना चाह रहे हैं तो वी शुड प्रॉपरली सेंड इट टू ऑथराइज्ड पर्सन. ठीक है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट इन आवर लाइक जो हमने एक फॉर्म गूगल फॉर्म है उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन सेंड अस लाइक मैसेज कर दीजिए. फर्दर हैंडिंग ओवर टू मनीषा जी. मनीषा जी, आर यू देयर? Yes, Namrata, I'm here. हाँ जी. Please. Manisha ji, put on your video, please, if you can. Please turn on your video. Thank you, everyone. Hello, everyone. I was listening since very beginning, and Dr. Rana, you are so humble. Dr. Rana has been, facilitator of, collecting maybe more than 500 kgs of waste, MLPs. We have diverted it to the recyclers actually. So उन्होंने अभी recent वाला बताया होगा, but उन्होंने पुराना वाला skip कर दिया. So I will be adding that. Okay, and thank you Namrata, thank you Pooja ma'am for adding me into this group. I'm sorry, I'm out. So you have to bear that. You can see all that, kiosk and all. All right. Pooja ma'am, you had approached me related to plantation, right? The monsoon is coming. We have to work. We have to work on increasing the green cover. So I am little, working on things like, identifying those locations, those places where we can, add our actions, our inputs, adding more greenery or more, beautification in our environment, to be very honest with. And I really want everyone out here, हर एक को मैं humble request कि please आप लोग आए, plants अगर आप ला सकते हैं अपने लेकर आए, और नहीं तो we will be providing plants. Locations हमारी maintenance we will take care of. जितने हम plants इस साल में, हम हर साल में कुछ ही period होता है दिल्ली में स्पेशली जब हम पेड़ लगा सकते हैं, जितने हम लगा सकते हैं we just start counting those numbers. ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो एक कंट्रीब्यूशन हो गया हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हम जहाँ पर भी हैं. तो
little bit touching about the plants, I will suggest कि please normal neem peeples ना लगाएं जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं. आपको थोड़ा सा research work we can also help you out. नेटिव वेराइटीज, जो वेराइटीज हमारे पेरेंट्स ने अपने टाइम में देखी थी वो वाली वेराइटीज लगाएं. any type of plant जो which is helping the biodiversity, which is helping the place. Like for example, अगर आपके घर जहाँ पे भी आप प्लांट्स लगा रहे हैं उसके पास स्लम आपको दिखाई देता है, तो गो फॉर फ्रूट ट्रीज, ताकि उनको एक तरह से फ्रूट्स मिल सके. ठीक है, वो वाले फ्रूट्स लगाएं जो फ्रूट्स हमने बचपन में खाए हैं. जैसे अब आप देखिए फालसे बिल्कुल आउट हो चुका है हमारा. देसी बेर, इफ आई टॉक अबाउट, शहतूत मेरे बच्चों ने आज तक टेस्ट नहीं किया. लसोड़ा जिसके हम अचार कभी खाया करते थे बचपन में. तो इस तरह के अगर हम पेड़ लगाते हैं, वो बहुत नेटिव वेराइटीज है, वो हमारी सॉइल को भी अच्छे से पकड़ते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी वापस लाते हैं. प्लस वी शुड थिंक अबाउट बर्ड्स ऑल्सो. तो हमें बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए उस तरह के पेड़ लगाने चाहिए जिसपे बहुत बर्ड कैच करती है. गूलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट. तो अगर हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, हमें उस तरह के प्लांट्स लगाने होंगे जो कि सबको हेल्पफुल करें. सिर्फ हमारे एज ए एयर पोल्यूशन सकस ना हो, सिर्फ ग्रीनरी ना हो, यस ब्यूटिफिकेशन भी हो. हम लोग कश्मीर जाते हैं चिनार के पेड़ देखने के लिए. हम लोग वी क्लेम अबाउट वाशिंगटन डीसी का बड़ा फोटोग्राफ्स आती है, चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगा हुआ है. जापान वी से ओके चेरी ब्लॉसम, तो व्हाई नॉट इन दिल्ली. हमारे सेमल, if you go in March outside, you see that सेमल पलाश आप देखते हो, it's unbeatable. I no words to express the beauty it gives to the surroundings. पूरा orange, तो वो उसके भी तो हम पेड़ लगा सकते हैं. We can make a row out of that. हम भी अपनी दिल्ली को उतना ही सुंदर बना सकते हैं, and we should not wait for the government to do that. So let's please start that. मैं फिर एक बार, मेरे को पूजा जी ने स्पेशली बोला है कि अगर हम सब मिलकर जुड़ते हैं तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं. मेरे पास बहुत सारी लोकेशंस इस बार हैं वेस्ट दिल्ली में, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली आल्सो. एनीवेयर wherever you say, we have locations. Come, plant, maintain. That's the only motive objective of my being here today. And definitely will love to connect with you all. Mitti Connect, awesome dive, bringing everyone at one platform and working on the environment. That's it. Pooja ji, I'm missing something. No, I believe you have covered the things. We are on the agenda. So Right. our only thing is, if anybody out here is interested to plant, how they can connect with you, how they can get in touch with you, if they want to contribute something, if they want to come and plant the trees, how they can get in touch with you. Ma'am, मैं आपसे share कर दूँगी details. So see, Mitti Connect is already there, right? So let's make this as a common platform. जो भी जहाँ पर भी locations है और specified date अगर हम लोग कर लेते हैं arrange, तो I will let you know. We can manage that. Can you please talk about seed ball activity, और क्या कोई recent future में आप कोई ऐसी activity हमारे participants के लिए organize कर सकते हो? Seed ball, yes, definitely, Dr. Anna. अगर हम बताइए सबको. ओके, हम आज की डेट में ऐसे फ्रूट्स खा रहे हैं जो बहुत अभी जिनकी सीड्स हम लोग यूज कर सकते हैं. लेट्स से मैंगो, जामुन आ रहा है, राइट? फालसेब आपने खाया होगा. अगर आप कोई भी सीड, मतलब कोई भी सीड जिसका जो सीड हमारे दिल्ली के एनवायरनमेंट में लग सकता है, या फिर सपोज लीची है, लीची का सीड, इनको हम मतलब ऑनेस्टली मैं कोई भी सीड नहीं फेंकती हूँ. आई जस्ट प्रिजर्व देम. आप उसको धो लीजिए, उसको धूप में सुखा दीजिए और उसको रख लीजिए. द ओनली थिंग इज ये देखना कि इसमें बहुत मॉइस्चर ना हो, ताकि उसमें फंगस ना लगे. सो उसके लिए एक स्पेशल मिट्टी हम लोग बना सकते हैं, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, थोड़ा सा गोबर अगर मिक्स कर सकते हैं, उसको रैप करना है. एक न्यूट्रिएंट बेसिकली एक वूम देना है सीड को. एंड अगर मान लीजिए मैंगो है, तो उस मैंगो को हम कोई भी बैरन एरिया है या हम कहीं पर घूमने भी जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप समर्स में मसूरी घूमने जा रहे हैं, हिल स्टेशन जा रहे हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा है, आप उसको वहाँ पे डिस्पर्स कर दीजिए. सीड बॉल्स का कंसेप्ट ये रहता है कि इसका सर्वाइवल या फिर इसका राइपनिंग जो नॉट राइपनिंग, इसका सैपलिंग जो कन्वर्जन रेट है दैट इज अराउंड 20%.
तो कम से कम और कुछ नहीं तो ये हो जाता है कि हम पूरे सीड्स को एटलीस्ट डस्टबिन में नहीं फेंक रहे हैं, लैंडफिल साइड पे नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 20% सीड्स तो हमारे वापस स्प्राउट हो सकते हैं। तो दैट इज वन थिंग। अगर सीड बॉल्स कर सकते हैं हम लोग, मतलब इसमें ट्विन एक्सरसाइज हो गई आपकी। आपने एक तो सीड्स को थ्रो नहीं किया, लैंडफिल साइड के लिए ऐड नहीं किया, दूसरा आपने इसको रीयूटिलाइज कर लिया, एंड दिस हेल्प्स इन ग्रीनरी। बट C2H की दिल्ली एरिया में इतना सक्सेसफुल नहीं होता। या तो हम कहीं ऊपर पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं, वहां पे हम इसको स्प्रेड कर दें, सक्सेस रेट इज वेरी हाई। दैट इज अबाउट इट। So everybody can do that at their home, मतलब that's a humble request कि आप लोग अपने seeds इकट्ठे कर लीजिए और उसको रीयूटिलाइज कीजिए, recycle if I put it. Acha, how to make it seed ball? Like if we preserve also, because nowadays, yes, we have a number of Lot of seed mango, fruits. right? So how to do it? Like it is a practical problem. How many seeds like can be preserved at home? कैसे रखें, कहाँ रखें? That depends on how much space you are having, right? आप कितना उसको स्टोर करके रख सकते हैं. Like for example, me as such personally, I don't even throw a single seed. मैं जितने भी आम खाती हूँ पूरे साल के, मैं उसका सारे सीड्स प्रिजर्व करती हूँ. सो उसका अगर इकट्ठा उसको मिट्टी, अगर आपके आसपास कहीं पे भी मिट्टी है, उसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा कंपोस्ट मिला लीजिए, एंड यू मेक अ सीड बॉल आउट ऑफ इट. थोड़ा सा उसको ड्राई कर लीजिए, ड्राई करके उसको आप रख लीजिए, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट, कभी भी आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट दूर कहीं जा रहे हैं, आप कहीं आउटस्कर्ट्स में भी जाते हैं, यू कैन डिस्पर्स इट इन द फॉरेस्ट एरिया एंड डू इट इन द मानसून सीजन, ताकि मानसून सीजन में फिर भी हमारे पास चांसेस हाई होते हैं, बिकॉज अदरवाइज नॉर्थ इंडिया इज लिटिल ड्राई, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है. बट एनीवेज, अगर आप उसको इनफैक्ट आप प्रिजर्व सीड्स को भी आप अगर फॉरेस्ट एरिया में डाल देते हैं, दैट इज गुड, इट विल बी कंपोस्टेबल. वो आपका कंपोस्ट होगा नहीं, घर की कंपोस्ट में आप उसको कर नहीं पाओगे, तो आप उसको अगर इकट्ठे करते हैं जहां भी जाते हैं, आप उसको प्लीज स्प्रेड कर दीजिए, इवन इफ यू आर नॉट मेकिंग सीड बॉल्स, सो इट विल बी कंपोस्टेड इन द फॉरेस्ट. इवेंचुअली इट इज गोइंग टू हेल्प आउट टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल. सो इट ऑल डिपेंड्स आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, आपके पास रिसोर्स है इसको स्टोर करने का. The crux is reuse. अच्छा मनीषा जी, one of like many people are here from Delhi. I would like you to like share your experience. अभी आप दिल्ली में जो भी प्लांटेशन करते हैं, जैसे अभी हम नेक्स्ट जैसे मॉनसून आएगा, what is your suggestion? Like people should plant 5-10 trees around them, and कैसा उसमें खाद वाद डाल के जो एक प्रोसेस हम करते हैं, क्या थोड़ा सा आप शेयर करेंगे? एंड अच्छा, what is your guidance? Like एक तो है कि we collaborate with some NGO or something, जैसे इनका मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी. मनीषा जी इज फ्रॉम हरा जीवन. इन्होंने बहुत हजारों, आई थिंक लाखों हो गए होंगे अब तो, जो अभी नहीं हुए. We are still thousands of trees are planted by them, like within span of I think 5 to 6 years. 7 years. हाँ, और इनका बहुत अच्छा, इन्होंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर काफी काम किया है. Now I would like you to share your experience कि कैसा किस टाइम पे हमारा करना अच्छा रहता है. और जैसे आपने बताया कि नेटिव सीड्स लगाने हैं, I would like to share list of some government nurseries also, जहाँ से अभी इस टाइम फ्री सैपलिंग्स मिलते हैं, एंड अदर सोर्सेज इफ यू हैव, वो भी आप बता दीजिए. मैं एंड में शेयर करूंगी, यू कंटिन्यू, आप बता. Sure. See, nurseries normally do not have native varieties. Native varieties, जो pure native varieties हैं, वो थोड़ी expensive पड़ती हैं. And there are only 2 or 3 locations which I know जहाँ से हमें मिल सकती हैं. Little difficult, but अगर हाँ, depends on what. नमस्कार. Sorry. Okay. कागज पेन ले लो. डिपेंड करता है कि मेरा कितना पैशन है. I am गुड़गांव है. This is one nursery which is having all the native varieties. Okay. I don't know. Native varieties में बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ बहुत native varieties जो दिल्ली के लिए exclusive है. आप हमें ना कोई 5 नेटिव वेराइटीज एक बार नाम लेके बता दीजिए, सो दैट इस साल हम उन्हीं 5 पे फोकस करें. जैसे आपने एक ये बताया हमें लसूड़ा, एक लसोड़ा, और एक कभी आपने बताया फालसे, शहतूत. ये है गूलर. गो फॉर गूलर. गूलर जो है बर्ड्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है. देन कदम,
कदम। कदम बहुत सुंदर पेड़ है। टेसू, पलाश, राइट। जो लोग ऑर्गेनिक्स में है, ऑर्गेनिक होली कलर्स जिन्होंने यूज किए हैं, दे कैन अंडरस्टैंड टेसू कितना इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे कस्टम्स में भी था। I can share the list so we can share with everyone. मैं कंपाइल करके एक लिस्ट शेयर कर देती हूँ। अगर ये हमें फिर भी किसी भी नर्सरी में मिल जाएंगे, लेकिन जो बहुत एक्सक्लूसिव नेटिव वैरायटीज हैं वो सिर्फ 2 या 3 नर्सरीज हैं दिल्ली में। एक आयन गुड़गांव है, एक तुहिन इन हरसाना की नर्सरी है फरीदाबाद, सिर्फ उनके पास मिलता है। अभी हम जैसे इस टाइम पे सीड्स फॉल हो रहे हैं, ये जैसे आपने बोला गूलर के भी इस टाइम सीड्स आ रहे हैं, मैंने देखा है। और एक वो जो अमृत नहीं, ये जो छाल होता है, अर्जुन छाल जिसका यूज होता है, उसके बहुत सारे सेपलिंग्स आ रहे हैं इस टाइम। तो हम उनको भी सेव कर सकते हैं। वी कैन विजिट आवर नियर बाय पार्क्स ऑल्सो, तो वहां से हम सेपलिंग्स लेके, बिकॉज ट्री के नीचे हंड्रेड्स ऑफ सेपलिंग्स आर देयर, बट उनको प्लांट करके उसको केयर करना इज द नीड ऑफ द चैलेंज। उसमें हमारी ना दिक्कत आती है, हमारे पास कितनी लैंड अवेलेबल है। क्योंकि अगर कभी भी हम अगर अपने सीड से ग्रो कर रहे हैं सैपलिंग्स को, नम्रता, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें उसको एटलीस्ट 3 साल तक अपने पास रखना पड़ेगा, हमें उसको बच्चे की तरह ग्रो करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन शिफ्ट इट टू द लैंड। अगर हम बहुत छोटा करते हैं तो उसके चांसेस सर्वाइवल के कम हो जाते हैं। सो प्रेफरेबली कोई भी सैपलिंग है मिनिमम 3 years, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो उसमें आपको डिपेंड करता है आपके पास कितनी लैंड अवेलेबल है उसको ग्रो करने के लिए। राइटली सेड, आप जैसे गूलर के और ये अर्जुन के आप इकट्ठे कर लीजिए एंड उसको कोकोपीट में ट्राई कीजिएगा उसको जर्मिनेट करने का, देन बट प्लीज टेक केयर ऑफ 3 years। और प्लांटेशन के लिए एक टिप मैं दूंगी कि अगर आप कभी भी लगाते हैं प्लांट्स तो प्लीज आप छोटे सैपलिंग्स ना लगाएं। छोटे सैपलिंग्स की ना सर्वाइवल रेट कम होता है। सो ऑलवेज गो फॉर 5 to 6 feet हाइट सैपलिंग। तो हम लोग जब भी प्लांटेशन करते हैं हमें एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट हम 5 फीट से नीचे का प्लांट नहीं लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो लैंड की रफ और वेदर की कंडीशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है। सो इट्स जस्ट लाइक अ बेबी, मतलब फर्स्ट गर्मी फर्स्ट सर्दी इज वेरी क्रिटिकल। ये चीज तो आपको छोटे बच्चे की तरह रखना पड़ेगा। और पहले के 3 साल अगर हमने ये चीज कर दिया तो वो आपका पेड़ बन गया। वो फॉर मोरिंगा। अगर आप नेटिव में जा रहे हैं, मोरिंगा लगाइए। मोरिंगा हमारे दिल्ली में, जबकि ये नेटिव है हमारा, हमारे दिल्ली में नहीं है। हम ड्रमस्टिक्स खरीदते हैं बाहर जाके, राइट, इतनी महंगी मिलती है हमें स्टिक। और अगर मेरा मोरिंगा का पेड़ पास में है तो इट विल गिव यू इनॉर्मस, और हमें कभी आयरन की कमी नहीं होगी। एंड इफ इट इज नियर स्लम, प्लीज गो फॉर मोरिंगा। इफ मोरिंगा इज देयर, आपका मैल्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा स्लम्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं नम्रता जो बड़ी ध्यान रखनी है। बाकी प्लांटेशन के टाइम पर जो आपने मुझे बोला था, तो आप, आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी देसी वर्जन, कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, राइट, आपने क्या करना है, आसपास की घास है, पत्ते हैं, आप उसको उसी को गड्ढे में डाल दीजिए। सो इट विल बिकम, सॉइल विल बिकम वेरी परफोरेटेड। हमें ना मिट्टी क्योंकि वहाँ की सख्त होती है, तो उसको थोड़ा परफोरेटेड करने लेके, ताकि न्यूट्रिशन जाए, पानी जाए नीचे। हम जितना भी उसको मल्चिंग बोलते हैं, मल्चिंग अंडर द ग्राउंड मल्चिंग एंड अबव द ग्राउंड मल्चिंग। मल्चिंग इज लाइक जितना भी मेरा ग्रीन लीव्स है मैंने अंदर डाला, ड्राइड लीव्स, यस, ड्राइड, वेट, व्हाटएवर, नेचर इज वेरी गुड इन कंपोस्टिंग। आपने जितना भी डाला उसमें, सॉरी, पत्ते डाल दीजिए, और उसके ऊपर फिर आप प्लांट लगा दीजिए, वाटर इट, एंड उसके ऊपर ड्राइड लीव्स प्लीज ढक दीजिए, तो उसमें वाटरिंग भी आपकी कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड मल्चिंग। और मल्चिंग अगर हम करते हैं तो प्लांट का सर्वाइवल रेट गोज टुवर्ड्स 99%। और हमारा वाटर के ऊपर उसका रिलायबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा अंदर। So these are few tips, which should be taken care of. Location, where you are planting, what type you are planting, and how you are planting, and you can get a very green, good cover. और रही बात नम्रता टच में होने की, लोकेशंस, इफ यू से आई कैन, जहाँ से मुझे पता लगता जाएगा, आई कैन प्रोवाइड लोकेशंस, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रीज लगाने में थोड़ी जगह का बहुत इशू रहता है। एंड तो places, so definitely we have too many in West Delhi now. आपके वजीरपुर एरिया में मुझे कम से कम 4-5 पार्क्स आई विल फुली असाइंड, कि आप जितने मर्जी लगाने लगाए। आपके जो भी ओकेजन्स हैं, which पूजा मैम had specifically told me, अगर आप बर्थडेज वी हैव, एनिवर्सरीज वी हैव, किसी की मेमोरी में लगाना है,
प्लीज एक पेड़ जरूर लगाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं। एंड राइटली सेड नम्रता, मिनिमम 10 पेड़ तो हर इंसान को हर साल जरूर लगाएं। हम सांस लेते हैं और हम हर वक्त सांस लेते हैं, क्या हम 10 पेड़ नहीं लगा सकते हैं साल के? वी कैन, एंड एट अ प्लेस जहाँ पे मेंटेनेंस हो। तो रिक्वेस्ट टू ऑल, आप अपने चारों तरफ आइडेंटिफाई करिए। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आज रोड पे अपने घर के बाहर वाली रोड पे चलती हूँ तो मुझे मिलता है कि एक पेड़ की स्पेस मिल आती है कहीं ना कहीं पे। नहीं तो मेरे घर के अगर आगे, मैं घर रेंट पर रहती हूँ, अगर मेरा अपना घर होता मैं अपने घर के आगे एक पेड़ जरूर लगाती। तो द थिंग इज कि कहीं पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन टेक परमिशंस फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी। आप अपने घर के पास लगाएं, बाहर लगाएं, फॉरेस्ट में लगाएं, बट पेड़ जरूर लगाएं। And especially on your, you know, whatever functions, whatever you're celebrating, शादी है घर में, बर्थडे है, celebration, please do it. Thank you, Manisha ji. It was awesome you. having you here. Thank Any you. questions? I would like to add something more. एक चीज जो और मनीषा जी के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ मैं सबको, and because we will need your cooperation in this. मनीषा जी ने अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। बेरी वाला मंदिर है जज्जर के पास, जहाँ पे गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड कि वो मंदिर को के एरिया को प्लास्टिक फ्री बनाना है। उसके लिए वहाँ की क्लीनलीनेस और वहाँ क्लॉथ बैग्स का सिस्टम क्रिएट करना, इस सब काम में मनीषा जी बहुत जी जान से लगी हुई है। तो आप में से कोई भी अपने आसपास के किसी मंदिर के सिस्टम्स को क्रिएट करना चाहे तो मनीषा जी को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि वो अब इस प्रोसेस को फाइनलाइज करने की स्टेज पे हैं और शायद वो मदद कर सकेंगे इस बारे में। We have such precious gems. बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, and this is one of the thing that is very close to my heart. हम जब भी पूजा या मंदिर में कहीं पूजा के स्थान पे जाते हैं, we see lots and lots of plastics around. तो मनीषा जी ने अभी एक मंदिर की जिम्मेवारी ली है, and she'll be setting a footsteps for all of us so that we can do such things in our areas, है ना? Sure, Namrata. We are starting with Sector 3 Rohini. Oh, Somebody can support in that. हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जो रिंग रोड मॉल के पास में काली माता मंदिर है आउटर रिंग रोड पे, वहाँ पे भी सिस्टम्स क्रिएट करने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। अभी चल रही है बातचीत, पर अगर आप में से कोई let's have a separate workshop on MLP or single use plastic. MLP and single use plastic पे एक separate session रखते हैं so that people are aware of the things they are using. देखिए जैसे मंदिर की बात करें, जो चुन्नी चढ़ती है that is totally synthetic, कुछ भी नहीं है उसका, otherwise वो पानी में जाती है, सब कोई नदी में बहा देते हैं। तो ऐसे ही प्रसाद के लिए बड़ी सारी चीजें हैं, we can step by step go for it. And I would like everyone to like fill the form, Google form on our website Mitti Connect, so that we can reach you out for further sessions. And any questions you can post there. And thank you everyone. Anything else, Pooja? Over to you. So I believe, yes, we had a good start for this today's World Environment Day, and we hope to continue this kind of sessions, but we need all your support. We are there. It is just one thing I would like to share, that always one thing is believed, and which I have learned from my teacher Binay Bhaiya, संगे शक्ति कलयुगे। हम साथ चलेंगे तो कहीं पहुंच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। So it is only our endeavor कि हम इकट्ठे चलें सारे। और हम मेरा और नम्रता का स्पेशली हमारा यही एक इंटेंट है, आप इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, हम काम नहीं कर पाते, बट हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो कर रहे हैं हम सब तक पहुंचाने के लिए वी आर देयर। हम इतनी जिम्मेवारी जरूर ले सकते हैं। यस नम्रता, that responsibility we can take. Yes, Pooja, yes, we are there. And evening again, we are having a session 5 to 6 today with Mr. Vinay, who is a doctor. He is a civil engineer. He is from IIT Roorkee, and we are having a session on Agnihotra and geostress. Geostress is a kind of
think we suffer a lot due to some such kind of vibration, and he'll be sharing us like Agnihotra for that, how Agnihotra helps. And in evening we are having a session 7 to 8, a very special session on how we can save water and rainwater harvesting ka ek basic sa model he'll be sharing. It comes within the range of 3,000 to 5,000 that we can like install in our homes. Otherwise also he'll be sharing all the solutions of what we can do to conserve water. है ना? अभी देखो ये सब चीजें ना we need to start up early. It's already too late. So thank you everyone for joining this session, and would like to have you people in our next upcoming sessions also, and spread the word so that these things can reach out more and more people. Thank you so Yes. much. Thank you, everybody. Namaste. Namaste. Thank you.